Welcome back. Here with us on Times Now. Viewers, heavy rains have caused massive destruction across North India. From Jammu to Himachal Pradesh and Uttarakhand, these states are struggling under heavy, continuous downpour. In fact, flooding and landslides have washed away numerous homes and buildings and hotels, leaving several stranded. Emergency teams are actively wading through flooded streets to rescue people trapped inside their houses. Let's talk about Himachal Pradesh specifically. Heavy rainfall has caused severe damage. A crucial bridge near Manali was completely washed away due to flash floods triggered by continuous downpour. Meanwhile, visuals from Kullu show extensive infrastructural damage to several houses following heavy rainfall. हिमाचल में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है और इस वक्त हम कुल्लू से मंडी का जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ गिरा है और ये पहाड़ 2 दिन पहले गिरा था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ जबरदस्त बारिश हुई थी जिसके बाद एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला था और पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये नीचे आ गया था। यह नेशनल हाईवे है जो मंडी से कुल्लू की तरफ जाता है और आगे मनाली की तरफ जाता है। उस रास्ते पे इस तरीके से जो भूस्खलन है वो देखने के लिए मिल रहा है और इस कारण इस सड़क पे आने वाले सभी वाहनों की एंट्री को पाबंदी लगा दी गई है। काफी दूर तक वाहनों को रोक लिया गया है। हमारे साथ कर्मचारी हैं जो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों से लगातार सड़क साफ करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। इनसे पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, कब ये गिरा था और कब से यहाँ काम चल रहा है लगातार? लगातार तो 1 महीना हो गया और ये जो पहाड़ गिर रहा है ये 1 महीने से ही गिर रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा गिरना है और जब परसों बहुत ज्यादा बारिश हुई तब पूरा ही नीचे आ गया। पूरा नीचे आ गया। पूरा दिन लगा इसको खोलने में। फिर तो अभी क्या आगे की स्थिति? आगे भी सड़क इसी तरह गिरी हुई है? पूरी सड़क 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा बंद था। ये बिल्कुल पहाड़ नीचे आ चुके हैं। आप जाती बार देख लेना, उधर से तो रोड ही नीचे चला गया है। रोड नीचे चला गया? पूरा रोड नीचे चला गया। कोई जन की हानि तो नहीं हुई है? ना कोई हानि, कोई ऐसा नहीं है, कोई नुकसान ऐसा नहीं है। बाकी रोड ही गया हुआ है। और कब तक सफाई हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ तो सर अब सफाई हो गई है। गाड़ियों के लिए खुला है, डबल लाइन खोल दिया गया है और थोड़ा आगे बंद हो चुका है। जो NH रोड है ना, जो PWD के अंडर है, वो बंद है। ये मंडी से कुल्लू जाने वाले सड़क पर बड़ा पहाड़ का हिस्सा गिरा था जिसके बाद यहाँ पर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, हिमाचल। Let's also tell you a little bit about what has happened in Jammu and Kashmir. Another cloudburst has hit the Ramban district, causing significant damage and distress among people. Initial reports confirm that 5 people went missing in the incident. Rescue teams have so far recovered 3 bodies while 2 people still remain missing. In Riyasi, a devastating landslide triggered by intense overnight rainfall flattened a house, tragically killing all 7 members of a family. Among the deceased are a couple and their 5 children. Meanwhile, in Kishtwar, real-time video footage from August 26 has surfaced showing twin cloudbursts hitting a village in Warwan. The video captures panic as flash floods caused by the cloudbursts swept through the village, in fact destroying 30 houses completely, inundating over 60 and causing minor damage to more than 2 dozen houses. Dozens of livestock were also washed away by the mud and flood waters. Meanwhile, the Indian Air Force has ramped up flood relief and rescue operations in northern India, focusing specifically on the worst-hit Jammu and Punjab regions. Mi-17 and Chinook helicopters have completed over 55 sorties to evacuate stranded civilians along with Indian Army and Border Security Force personnel from the flooded areas. Additionally, C-130 transport aircraft also is being used to quickly deploy specialized NDRF teams to the affected zones to aid in the relief efforts. इस वक्त जम्मू में है और जम्मू के उस पुल पर मौजूद हैं जो तावी नदी पर बना हुआ था और पूरे तरीके से ढह गया था और अब इस पुल को सुचारू रूप से यहाँ पर यातायात जारी हो जाए इसके लिए सेना ने खुद कमान संभाल ली है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो हैं लोहे का पुल यहाँ पर बना रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सेना की पूरी बटालियन यहाँ पर लगी हुई है और ये पुल जो है लोहे का पुल जो कि 1 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा उसके बनाने का काम लगातार चल रहा है। सुबह 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर
सेना आ गई थी और ये सेना के जवान आ गए थे अपने सारे इक्विपमेंट के साथ में। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि लोहे का पुल जो है वो लगभग 60 से 50% बनकर तैयार है। इसके ऊपर अब लोहे की शीट्स लगेंगी और ये पुल में यातायात का, एक तरफ से जो पुल का यातायात है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना ने अपने हाथों में बागडोर संभाल ली थी और उसके बाद में जहां जहां पर भी प्रॉब्लम्स हो रही थी सिविलियंस को, उन सारी सिविलियंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेना आगे आ गई थी। यदि इस पुल का काम पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य विभाग को दिया जाता तो निश्चित तौर पर महीनों लग जाते, लेकिन चूंकि 3 पुल हैं, चौथा पुल ये है और भगवती नगर और बेली चराना के बीच का ये पुल है। ये पुल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी के जो 3 पुल हैं उन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का लोड पड़ रहा था। तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक के लोड को खत्म करने के लिए, यातायात को सुचारू रूप से इस चौथे पुल से चालू करने के लिए बहुत जरूरी था कि यहाँ पर तुरंत पुल बनाया जाए। और देखिए आर्मी ने किस तरीके से यहाँ पर जो है इस तरीके की गाटर, देखिए इस तरीके की गाटर का इस्तेमाल किया जाता है लोहे का पुल बनाने के लिए। ये सारे के सारे सामान को लेकर सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पर आर्मी आ गई थी और उसके बाद में लगातार जो है आर्मी का काम चालू हो गया था। और देखिए अभी इस वक्त लगभग 1 से 1.5 से 2 बज रहा है अभी, और 2 बजे के आसपास आप देख सकते हैं कि लगभग 60% से ज्यादा पुल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आर्मी के जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। धीरे धीरे करके ये पुल जब पूरा बन जाएगा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जो लोहे की गाटरों के ऊपर जो है लोहे की शीट्स वो बिछा दी जाएंगी और उसके बाद में पुल का यातायात शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण ये पुल बनाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए जब तावी नदी अपने पूरे ताव में थी, अपने प्रचंड वेग में थी, तो किस तरीके से उसने यहाँ पर तबाही मचाई है। ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, खंभे टूट गए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो वहां पर पड़ी हुई है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा था। पुल से जब जैसे ही पुल क्रॉस करने के बाद में जब जमीन पर लोग आते थे तो यहाँ का हिस्सा जो है, जो यहाँ पर मिट्टी थी, इस पूरी मिट्टी को यहाँ से बहाते हुए तावी नदी ले गई। और ये देखिए सामने की तरफ जो बैराज बना हुआ है, अभी भी तावी नदी का ताव तो कम हो गया है, वेग तो कम हो गया है, लेकिन देखिए किस तरीके से अभी भी पानी जो है वो बदस्तूर पूरे तावी नदी में चल रहा है, जारी है। और साइड में आप देख सकते हैं कि जो तबाही का मंजर है वो किस तरीके का रहा है। जब यहाँ पर अपने पूरे उफान पर तावी थी, जब यहाँ पर ये पुल टूट रहे थे, कारें गिर रही थी, मिट्टी बह रही थी, उस दौरान भी हमने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो थी और सहरन पैदा कर देने वाली, डर पैदा कर देने वाली तस्वीरें थी। रोमांच भी लोगों के मन में था लेकिन डर भी लोगों के मन में था। और जिस तरीके की ये यहाँ पर परिस्थितियां पैदा हो गई थी, उन परिस्थितियों के चलते हमने आपको पहले भी बताया कि ये बेली चराना का दूसरी तरफ का इलाका है, बेली चराना का। यहाँ पर भी आपको हमारे विजय अमित भारद्वाज जो हैं वो तस्वीरें दिखाएंगे सामने की तरफ की। इस तरफ की तस्वीरें अमित जी, इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं जहां पर दोनों तरफ के 40 से 50 मकान जो हैं वो पूरे तरीके से ढह गए थे और उनके अवशेष भी अब आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। देखिए सामने की तरफ, इस तरफ अमित जी इस तरफ भी दिखाइए, इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा बेली चराना का जो इलाका रहा है, लगभग 30 से 40 मकान वो पूरे तरीके से ढह गए थे और उनके अवशेष आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि नदी का पानी बहुत कम हो गया है, तावी नदी का पानी, लेकिन जब ये पानी अपने प्रचंड वेग में था, पूरे आवेश में था, उस दौरान इसने तबाही मचा दी थी, बहुत जबरदस्त तरीके से बर्बादी यहाँ पर मचा दी थी। और ये जो पुल है, अब ये मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में, 3 घंटे में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से जो आवागमन है वो सुचारू रूप से जारी हो जाएगा। यही खासियत है इंडियन आर्मी की कि जो महीनों का काम होता है वो चंद घंटों में कर देते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है इंडियन आर्मी द्वारा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पर कोई नहीं जा सकता था वहां पर भी आर्मी गई और आर्मी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी बाढ़ बारिश हुई वहां पर आर्मी ने जबरदस्त तरीके से काम किया और एक नहीं हजारों तस्वीरें आपको मिल जाएंगी आर्मी की, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का विषय हो, चाहे अभी का विषय हो या कभी भी पहले भी जब जम्मू कश्मीर में
13-14 के आसपास बाढ़ आई थी, उस दौरान भी आर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर जगह की सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए कंट्रोल कर दिया था। और देखिए यहां पर भी इस पुल को चालू करने के लिए आर्मी ने तुरंत अपने हाथ में पोजीशन को लिया और ये देखिए 70% से ज्यादा पुल जो है वो बनकर तैयार है। इनके ऊपर ये जो मोटी मोटी लोहे की गांठरें हैं, इनके ऊपर शीट्स बिछाई जाएंगी लोहे की और उसके बाद में ये पुल जारी हो जाएगा। तो जो दूसरी तरफ का इलाका है वहां से और ये बेली चराना के इलाके के बीच में जो है यातायात जो है सुचारू रूप से सुगम रूप से चालू हो जाएगा। तो यही खासियत है हमारी इंडियन आर्मी की कि वो तुरंत सिचुएशन को अपने हाथ में लेती है और कंट्रोल में लाकर उसे सिविलियंस के लिए, लोगों के लिए बेहतर बनाती है।